Hello, am I audible to everyone? Yes, sir. बाकी लोग क्यों नहीं है? ओके चलेगा. uh, One second, let me take out one question before I answer questions. Hmm, ओके. बताइए कौन से क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इज देयर एनी प्रॉब्लम? 1 to 5 फर्स्ट. पेपर 1 to 5. Shreya, you are telling something. Sir, question one. Question 1. Okay. 1 second. Hmm, okay. Very good. What is this? Hmm. Is this visible to you? Hello, is this visible to you? Yes, sir. Hmm. So in question number 1, they are asking two different compounds have the same empirical formula. This is green, this is violet. Okay. So whenever you are having such questions, first of all, whatever information is given, that you try to work out. Okay. So A on reaction with excess of AgNO3 gives 1 mole of Cl minus. What does it mean? That 1 mole of Cl minus is free in compound A. Okay. So that when it reacts with AgNO3, it is going to give you 1 mole of AgCl. Okay. Now similarly for B also something is given. B on reaction with excess of AgNO3 gives 3 mole of AgCl. Okay. B is having 3 moles of Cl minus. Okay. That is why on reaction with AgNO3 it is going to give 3 moles of AgCl. Okay. Now from this information you can conclude that the structure of A should be Cr, Cl2, H2O whole 4, Cl dot, how many H2O are remaining? Dot 2H2. Okay. This will be your structure of A. And similarly for B, you can draw the structure. Structure of B will be something like Cr, Cl, how many Cls are there? It's a 3. So it will be H2O whole 6, Cl3. Okay. This will be your compound B. Okay. Is it clear? Yes, sir. Sir. Okay. So now checking the options. So for this option. So this option is wrong. Okay. Because the structures which you are seeing, those structures are opposite to this. Okay. So option A is wrong. Option B, A is a binary salt. Option B, A is a binary salt. So this is true. Okay. What is the meaning of a binary salt? So binary salt is that salt which is going to give you two ions when you put it in water. Okay. So for A, if you put A in water, it is going to give you one this complex thing will be there, and 1 mole of Cl minus will be there. So it is a binary salt. Okay. And B is a quaternary salt. So B is going to give you 4 ions. Okay. One is this complex thing and 3 moles of Cl minus. So overall you are getting 4 items. So that is why it is quaternary salt. Okay. So option B is your correct. Okay. Option C, conductance of A is greater. No. Again, because B is giving more ions, B is giving 4 ions in water, one this complex and 3 Cl minus. That is why conductance of B will be higher than A.
ठीक है. So C is the correct one, and B does not have any effect on heating. Yes, correct. So if any compound is having any water of crystallization, okay, for example A is having some water of crystallization, so if you heat this compound, then it is going to lose its water of crystallization to minus 2H2O, and then whatever this will be there plus Cl. Okay. But if you heat this thing, there is not going to be any loss because this water molecule is strongly bonded with this chromium, so it is not going to lose any water of crystallization. So that is why D is also correct. So answer will be B and D. Is it clear, Shreya? Yes, sir. Okay. Then question number 2 to 5. Any other doubt? 3. Question number 3. Hmm. Question number 3 is this thing. Acha, so acetic acid, PCl5, PDBSO4. Okay. Have you gone through the solution, Shreya? Yes, sir. So which part of the solution you are not understanding? One second, just let me jump there. सर 3 में ऑप्शन डी सही होना चाहिए, मतलब डी भी सही होना चाहिए मुझे लग रहा है. Option D. Option D is अच्छा one. ऑप्शन डी भी सही होना चाहिए. हाँ डी तो सही होगा ही ना. नहीं नहीं डी नहीं होगा सही. डी में आप देखो COH नहीं है, CHO है. ठीक है. Option D, if you look at this, this is this is CBr3 CHO. Okay, this is not COOH. Is it clear? अच्छा अच्छा, हाँ सर ठीक है. Okay. Then question number 4, 5. Any doubt? सर सेकंड में रैंक का मतलब क्या होता है? Rank is your rank मतलब वही जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो हम लोग निकालते थे ना, EAN. यस सर. EN बोलते थे या क्या बोलते थे, वो जो हम लोग 1/8 इंटू कॉर्नर पे जो है प्लस 1/2 इंटू फेस पे जो है वैसे करके निकालते थे ना, दैट इज ओनली योर रैंक. ठीक है. जैसे कॉर्नर पे जो होता था वो 1/8 कंट्रीब्यूट करता था. ठीक है. तो 1/8 इंटू लेटर से अगर सारे कॉर्नर्स पे ऑक्युपाइड है तो 1/8 इंटू 8 प्लस, मतलब इफेक्टिवली सेल के अंदर कितने एटम्स है हमारे. ठीक है. इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स. इज इट क्लियर? यस सर. नेक्स्ट और कुछ डाउट टिल नंबर 5? ओके 5 तक और कुछ डाउट नहीं है, आगे बढ़े. ओके क्वेश्चन नंबर 6 to 10. एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 to 10 नो डाउट, आगे बढ़े. डाउट है तो पूछो. नहीं है? Sir, 10th. 10th नंबर. ओके ओके तो आई एम जस्ट वन सेकेंड, आई एम जस्ट क्लियरिंग दिस ऑफ स्क्रीन पे जो भी है. क्वेश्चन नंबर 10th. क्वेश्चन नंबर 10th क्या है आपका? 10th में आपके पास है अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड. अच्छा देखो, जब भी ऐसे रोड मैप टाइप क्वेश्चन हो कि ए में आपने क्या किया, कुछ किया तो फिर बी आया. ठीक है. बी के अंदर फिर क्या किया, बी के अंदर KOH डाला तो फिर आपको क्या मिला, सी मिला. सी से फिर क्या किया, बी ऑन रिएक्शन में NH3, अच्छा सॉरी KOH नहीं यहाँ पे NH3. बी बी का आपने NH3 से कराया तो सी मिला. सी में फिर आपने क्या किया, हीट किया सी को तो फिर आपको डी मिला. ठीक है. और डी को फिर हीट किया किसके साथ, P2O5 के साथ, तो फिर आपको क्या मिला, 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल.
ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। ओके, तो जब भी ऐसा रोड मैप टाइप क्वेश्चन हो तो आप जहाँ पे आपको कुछ फाइनाइट चीज दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होता है, उधर से हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है डी ऑन हीटिंग विद P2O5 गिव्स 2 मिथाइल नाइट्राइल, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जैक्ट चीज बनाया है, ठीक है। तो ये 2 मिथाइल क्या है, नाइट क्या है यार, 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, 2 methyl propane nitrite. It will be CH3, mm, CH, CH3, and this will be CN. ठीक है, so this is propane, 2 पे मिथाइल है, प्रोपेन नाइट्राइट, ठीक है। ओके, नाउ अब यहाँ से आपको थोड़ा बैक जाना होगा, ठीक है। अब ये P2O5 क्या करता है, मयंक आप बताओ, P2O5 किस टाइप का रिएजेंट है, क्या करेगा? डिहाइड्रेटिंग। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। तो डिहाइड्रेटिंग आपको कहाँ लगता है, कहाँ से इसने पानी निकाला होगा कि इसका HOH, मतलब किस तरफ से निकाला होगा कि ये कंपाउंड बना आपके पास? देखो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया। जब भी पानी वानी निकलेगा तो या तो इंटरमोलिक्यूलर निकलेगा या इंट्रामोलिक्यूलर, और यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर, सॉरी, इंटरमोलिक्यूलर हो नहीं सकता है क्योंकि ए में भी आपके पास कितने कार्बन थे, एक आपके पास इसका स्ट्रक्चर दिया है ना, इधर भी 4 कार्बन थे, ठीक है, और थ्रू आउट द रिएक्शन आपके प्रोडक्ट में भी 4 कार्बन हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच तो इंटरमोलिक्यूलर नहीं होगा, इंट्रामोलिक्यूलर हो सकता है। और जब भी इंट्रामोलिक्यूलर में पानी निकलेगा तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आएगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, मतलब डी में क्या होगा, डी का हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए, इट विल बी सी डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। अमाइड को जब आप इसका इस तरह से क्या डिहाइड्रेशन कराते हैं P2O5 के साथ, तो यहाँ से H2 और यहाँ से O इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ डी। और डी का शायद फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला नहीं दिया है, ओके। ये एक पॉसिबिलिटी है डी का। फिर अब किस कंपाउंड को आपने हीट किया होगा तो फिर ये बना होगा, डी बना होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ चीज है। अमाइड कहाँ से बनता है, किसको हीट करना होता है? अमोनियम के सॉल्ट को हीट करने से अमाइड बनता है। आप लोगों ने वो रिएक्शन देखा है जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना था, पता है किसी को? प्रिपरेशन ऑफ यूरिया शायद था। तो वहां पे उसने NH4 CNO ये था, इसको हीट करके बनाया था, एक मिनट चेक करूंगा, N2H4O, हाँ, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस, वैसा ही कुछ इधर होगा। यहाँ पे आपके सी की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, ठीक है। फिर जब आप इसको हीट करेंगे इस सॉल्ट को, तो यहाँ से H2 निकलेगा और यहाँ से O निकलेगा, और फिर ये दोनों अमाइड बना लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब कौन से कंपाउंड में NH3 डालने पे ये हुआ होगा? एक सेकेंड, देखो यहाँ पे बी हमारा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NH3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो या तो यहाँ पे कुछ ये हमारे बी के अंदर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके NH3 अटैक कर सकता है, या फिर बी हमारा क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, ठीक है। उसके साथ हमारा NH3 रिएक्ट करके एसिड बेस रिएक्शन कर दे, या फिर यहाँ पे बी हमारा कुछ कार्बोनाइल कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, जिसपे
NH3 हमारा कैसे एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड अगर बना है तो एसिड बेस रिएक्शन से बना होगा NH3 के कारण, ठीक है। तो NH3 का किसी इसका जो एसिड है, ये जो हमारा कंपाउंड है, ये वाला जो एसिड होगा, ठीक है, इसके साथ मिलके हमारा क्या बनेगा, ये C कंपाउंड बना होगा, मतलब B कंपाउंड हमारा क्या होगा, ये एसिड हो गया, ठीक है। अब ये एसिड अब यहाँ पे हमने किसका रिएक्शन कराया था, ए का रिएक्शन कराया था आपने KOH के साथ, ठीक है। तो कौन सा ट्राई हैलाइड होगा, देखो यहाँ पे C4H7Cl3, ठीक है। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप देखो तो 0 आता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये कंपाउंड, इसके अंदर 3 क्लोरीन होंगे और 4 कार्बन है, ठीक है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। अब इसमें आप इसका हाइड्रोलिसिस ऐसे कैसे करें कि आपको OH मिला, ठीक है। तो जब तक ये तीनों क्लोरीन सेम कार्बन पे नहीं हो, तब तक इसके हाइड्रोलिसिस से आपको एसिड नहीं मिल सकता, ठीक है। ये समझ में आ रहा है मैम? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड होगा वो ये होगा, ठीक है। 3 क्लोरीन जब तक सेम कार्बन पे नहीं हो, तब तक उस पे OH माइनस रिप्लेस होके COOH नहीं बन सकता। तो ये आपका क्या हो गया, ये कंपाउंड आपका हो गया A, ठीक है। तो उसके बाद से आपका सब निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और आप अगर ऑप्शन वगैरह पुट करके भी देखो तो A अगर आपने ये मान लिया, ठीक है, तो इसके हाइड्रोलिसिस से फिर आपको एक अल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। उस अल्डिहाइड का फिर आप रिएक्शन कराओ NH3 के साथ, तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर उसको हीट करके क्या बनेगा वो फिर आप कुछ कर नहीं सकते उसका, ठीक है। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, तो थोड़ा सा सोचना था, ठीक है। ये रिएक्शन एक आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। दिस इज लिटिल अनकन्वेंशनल रिएक्शन, यहाँ पे जो C से D बना है, ठीक है, हीट करने पे जो हमारा ये वाला रिएक्शन हो गया, हाँ, ये जो हमारा रिएक्शन है C से D का, ठीक है। दिस रिएक्शन इज लिटिल अनकन्वेंशनल, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बताइए क्वेश्चन नंबर 11 to 15, एनी डाउट? 12 नंबर, 12 नंबर एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा डायग्राम क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, इसको स्क्रीन को क्लियर करें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12, 12 का आपका डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है। अगर इसको आप साफ साफ बनाएं तो दिस कंपाउंड इज, देखो यहाँ पे एक कार्बन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन जिसपे मिथाइल लगा हुआ है, चौथा कार्बन जिसपे क्या है, यहाँ पे तीन, दो मिथाइल और एक वो है, क्या बोलते हैं, मिथाइल, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा कार्बन 1, ये कार्बन 2, 1 2 के बीच डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन 3, 3 से एक मिथाइल निकला है, ठीक है। फिर ये कार्बन 4, कार्बन 4 से एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल और तीसरा, ये थोड़ा लंबा है, ठीक है। लेकिन पता नहीं, ये डायग्राम एक्चुअली ऐसे नहीं होना चाहिए, तो जैसा दिख रहा है उसके हिसाब से आपका स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अच्छा आइन है, ओके। अरे ये क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो डायग्राम क्लियर नहीं है, ठीक है। चलो इसको आप लोग बोनस ले लो। अच्छा ये 3 कैसे लिख दिया हमने, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ठीक है। तो आंसर आपका 4 हो जाएगा, लेकिन डायग्राम क्लियर नहीं है, तो चलो इसको बोनस में ले लो, ठीक है। और क्वेश्चन बताओ। फिर इसमें डबल बॉन्ड का ज्यादा प्रेफरेंस नहीं होगा? क्या डबल बॉन्ड का?
मतलब 1 वहां से नहीं शुरू होगा? 1 वहां से शुरू नहीं होगा। हम्म, एक मिनट, मेरे को एक्चुअल क्वेश्चन इसका चेक करने दो। अच्छा, इसका एक्चुअल क्वेश्चन ये वाला है। इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और इन दोनों के बीच का भी बड़ा है। अच्छा, ओ आप समझे, ठीक है। हाँ, क्लियर है, क्लियर है। अगर सिर्फ ये कंपाउंड हो तो आपका वो नंबरिंग तो इधर से शुरू होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन आपका ये कंपाउंड था ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो उसमें अल्कीन को पहले उन्होंने प्रायोरिटी दी, ठीक है, तो उसमें इधर से शुरू किया, ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। और बोलो। 13 14 15, 13 14 15 में डाउट नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 to 20। तो 17। Number of free valencies available for adsorption if four are lined together by covalent. इसका मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसमें ऐसे किया है। तो फ्री वैलेंसीज इसके पास कितनी है? 8 है। लेकिन इसका कुछ एनसीईआरटी में दिया है क्या इसके बारे में, कैसे करते हैं? इसमें क्या गड़बड़ी है? अरे, और बोलो, क्वेश्चन नंबर 20 भी डाउट था। यस सर। क्वेश्चन नंबर 20, a tetrapeptide has COH2 on. अच्छा, this produces glycine, phenylalanine, valine, align, and complete hydrolysis. Further style, the number of possible sequences with NH2 attached to a chiral center. अच्छा, तो देखो ये हमारा जो टेट्रापेप्टाइड है, सबसे पहले तो सबको पता है पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस कैसे होती है। इस टाइप का होता है हमारा कुछ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इस पार्ट में एक H लग जाता है, इस पार्ट में OH लग जाता है, इस तरह से हमारी क्या होती है, हाइड्रोलिसिस होती है। तो टेट्रापेप्टाइड मतलब ये क्या है, इस 4 पेप्टाइड से मिलके ये बना हुआ है, ठीक है। और वो चारों पेप्टाइड के नाम भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको हाइड्रोलिसिस करने पे हम लोग को क्या क्या मिलता है। तो ग्लाइसिन मिलता है, एलानिन मिलता है, फेनाइल एनालिन मिलता है, और तीसरा क्या मिलता है, वेलाइन मिलता है, ठीक है। तो
टेट्रापेप्टाइड का जनरल स्ट्रक्चर, एक मिनट मेरे को ये स्पेस थोड़ा क्लियर करने को। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो COH ग्रुप है वो एलानिन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। COH ग्रुप इज कनेक्टेड टू एलानिन, ठीक है। अब बचा इसमें तीन अलग अलग, तीन गैप और फिर इधर NH2 होगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज दिया है, NH2 इज अटैच टू अ कायरल सेंटर, ठीक है। तो ग्लाइसिन में, फिनाइलएनानिन में और वेलाइन में क्या है, कायरल सेंटर किस में है, बस बताओ कायरल सेंटर किस में है। बोलो आपको। कायरल कार्बन कौन है इसमें से? ग्लाइसिन को छोड़ के सब कायरल है। हाँ, ग्लाइसिन को छोड़ के सब कायरल है। तो यहाँ पे मतलब इस जगह पे हमारा या तो फिनाइल हो सकता है या फिर वेलाइन हो सकता है, ठीक है। तो NH2 यहाँ पे एलानिन, दो स्पेस खाली, और यहाँ पे एलन, सॉरी ये एलानिन नहीं है, ये वेलाइन, जो VAL, दिस इज COH, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, ग्लाइसिन और, अगर फिनाइल ले लिया आपने तो ग्लाइसिन और वेलाइन बचा, तो ये दो कंपाउंड ऐसे बनेंगे। और अगर इधर आपने वेलाइन ले लिया तो इस दो गैप में क्या भर सकते हैं आप, फिर फिनाइल भर सकते हैं और ग्लाइसिन भर सकते हैं। तो अगेन दो कंपाउंड ऐसे बनेंगे। तो टोटल हमारा आंसर हो जाएगा 4। ये समझ में आया सबको? बोलो आपको। मयंक आपको क्लियर हुआ ये? यस सर। तो फिर इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कुछ डाउट है? सर 1 और 2 दोनों। इसको हम क्लियर करें, स्क्रीन पे जो भी है। ये लिख लिया आप लोगों ने, क्लियर करें। यस सर। The section contains a sample of FeO. Sample of FeO in the ratio is partially oxide to change the ratio to 1:2. The number of moles. ठीक है, तो आपके पास मिक्सचर किसका है? आपके पास मिक्सचर है FeO का और Fe2O3 का, ठीक है। और वो किस रेशियो में है? 2:1 के रेशियो में, ठीक है। और उसमें से आपने क्या कराया, इसको आपने ऑक्सीडाइज कराया, तब तक ऑक्सीडाइज कराया जब इसका रेशियो क्या हो गया, इसका रेशियो 1:2 नहीं हो जाए, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, जैसे जैसे Fe+2 ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, Fe+2 विल गेट कन्वर्टेड टू Fe+3, वैसे वैसे क्या होगा, FeO का परसेंटेज कम होता जाएगा और इसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा Fe2O3 का, और एक इंस्टेंट आएगा जब ये 1:2 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeO ऑक्सीडाइज पर मोल्स ऑफ इनिशियल मिक्सचर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को रिएक्शन लिख के देखना होगा क्या हो रहा है। जैसे FeO से Fe2O3 कैसे बनेगा, FeO प्लस इससे क्या बनेगा, Fe2O3 बनाना है, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 प्लस O2, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा नहीं, हाफ, ठीक है। तो लाइक दिस,
तो 2 मोल ऑफ FeO से आपका क्या बन रहा है, Fe2O3 बन रहा है, ठीक है। तो लेटेस्ट से इसका आपने x मोल्स हुए जो कन्वर्ट हुएंगे, x का हम लोग को वैल्यू निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो x मोल से इसका कितना मोल बनेगा, x/2 मोल्स, ठीक है। और फिर FeO हमारे पास कितना बचेगा इनिशियली, लेटेस्ट से आपने क्या लिया था, आपने FeO का, अच्छा आपको निकालना क्या है, FeO पर मोल ऑफ इनिशियल मिक्सचर। अच्छा, तो आपने लेटेस्ट से 1 मोल मिक्सचर लिया, इस मिक्सचर का आपके पास कितना है, 1 मोल है, तो उसमें क्या होगा आपके पास 2/3 मोल FeO होगा और 1/3 मोल क्या होगा, Fe2O3, ठीक है। अब उसमें से x मोल आपने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, तो अब FeO कितना बचा, FeO आपके पास बचा 2/3 माइनस x, ठीक है। ये बचा आपका FeO, ठीक है। और Fe2O3 कितना बन गया आपके पास, Fe2O3 अब आपके पास बन गया 1/3 प्लस x/2, और फिर इसकी रेशियो दी हुई है, इसकी रेशियो है आपके पास 1:2, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिए, 2/3 माइनस एक्स अपॉन 1/3 प्लस x/2 इक्वल टू 1/2, ठीक है। इससे आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करें, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, 2 माइनस 3x अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 3x/2 इक्वल टू 1/2, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4 माइनस 6x/2 प्लस 3x इज इक्वल टू 1/2, 8 माइनस 12x इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, x इक्वल टू कितना 6/15, ठीक है, दैट इज 3/5, सॉरी 2/5, दैट इज 0.4। तो आंसर बी हो जाएगा, बी आंसर, चेक कर लेते हैं। टू का आंसर हाँ बी, ठीक है। क्लियर है आपको, यस सर। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी डाउट था, यस सर। तो इसको नोट कर लिया, इसको क्लियर करें। यस सर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये अलिंगम डायग्राम का है, ठीक है, अलिंगम डायग्राम, ठीक है। अलिंगम डायग्राम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो अलग अलग जो हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें पर मोल ऑफ ऑक्सीजन हमारा रिएक्शन कैसे उसका डेल्टा जी चेंज करता है टेम्परेचर के साथ, उसको ये डिनोट करता है, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो वही हमारा ये क्या है, डेल्टा जी वर्सेस टी का कर्व है, तो ये आपका वाई एक्सिस पे है, टी आपका क्या है एक्स एक्सिस पे है। स्लोप आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो स्लोप विल बी माइनस ऑफ डेल्टा एस, ठीक है। और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा वो आपका डेल्टा एच को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कुछ रूल्स हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल है, ये जो लोअर जो कर्व है हमारा, ठीक है, जैसे टी हमारा ए के क्या है नीचे है, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर तक टी हमारा ए के नीचे रहेगा, ठीक है, उस टेम्परेचर तक टी ऑक्सीजन ऑक्साइड एओ को रिड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो लोअर कर्व कैन रिड्यूस अपर कर्व, या फिर ऐसे कहो ऑक्साइड ऑफ अपर कर्व, क्या है ऑक्साइड ऑफ अपर कर्व, मीनिंग समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। देखो
जैसे यहाँ पे क्या है, इस P Q R A T U, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है। तो P Q को कब तक रिड्यूस कर पाएगा, सॉरी Q P को कब तक रिड्यूस कर पाएगा, जब तक Q हमारे P के नीचे रहेगा, ठीक है। तो आप देखो पूरे कर्व में क्या है, P हमारा ऊपर ही जा रहा है और Q हमारा इस तरफ जा रहा है, तो हमेशा Q क्या है, P के नीचे है, ठीक है। तो Q कैन रिड्यूस PO मतलब ऑक्साइड ऑफ P एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जिस तरह R और A का आप देखो, ठीक है, दिस इज योर R, दिस इज योर A, ठीक है। तो एक सर्टेन लेवल तक क्या है आपका, A R के नीचे है, ठीक है, इस टेम्परेचर तक, लेट अस से 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप कह सकते हैं टिल 800 डिग्री सेल्सियस A कैन रिड्यूस RO, ठीक है। और 800 डिग्री सेल्सियस के पास होगा, आफ्टर 800 डिग्री सेल्सियस R कैन रिड्यूस AO, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? हेलो, ये किसका डाउट था? सर मेरा श्रेया। हाँ श्रेया, आपको समझ में आया ये एलिंगम डायग्राम में क्या करता है? यस सर। बस आपको ये देखना है नीचे कौन सा कर्व है, तो नीचे वाला कर्व होगा वो क्या होगा, ऊपर को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और फिर आप नोटिस करो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी किसी जगह आपको शार्प इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्लोप एकाएक से चेंज हो गया, ठीक है। तो स्लोप एकाएक से कब चेंज होगा, जब डेल्टा एस एकाएक से चेंज होगा, और डेल्टा एस एकाएक से चेंज हो रहा है मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। या तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपर कन्वर्जन हो रहा है। तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर आपका या तो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? यस सर। फिर सेकंड में आप ऑप्शंस देखो, एट दिस टेम्परेचर मतलब किस टेम्परेचर पे 1000 डिग्री सेल्सियस पे बात चल रहा है, तो ये रहा आपका 1000 डिग्री सेल्सियस। ए रिडक्शन ऑफ AO इज नॉट पॉसिबल बाई R, तो रिडक्शन ऑफ AO आपका ऊपर है, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल बाई R, ठीक है। रिडक्शन ऑफ AO इज नॉट पॉसिबल बाई R, ये कैसे, AO रिडक्शन ऑफ AO इज पॉसिबल बाई R ना, तो ये आपका क्या होगा, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। रिडक्शन ऑफ AO इज पॉसिबल बाई R, ठीक है। AO का रिडक्शन क्या होगा, R से पॉसिबल होगा, और A आपको क्या होगा, मोल्टेन सॉरी वेपर स्टेट में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि A का ये वाला इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ चुका है, ठीक है। तो अब जब R इसको रिड्यूस करेगा AO को, तो वो कैसे करेगा, उसको वेपर फॉर्म में करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पहले आ चुका है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। इसलिए बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर सी अगर आप कैलकुलेट करके देखो तो ये +50 नहीं आता है इस रिएक्शन का, आई थिंक -50 आता है। इसको कैलकुलेट करके अगर देखो आप, ठीक है। और मेटल ए हैज मोर एफिनिटी कंपेयर टू आर। हाँ, तो जो जिसको रिड्यूस कर पा रहा है उसके बेसिस पे हम लोग उसका एफिनिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये रिएक्शन फिजिबल है, मतलब लेट अस से आर हमारा क्या कर रहा है, एओ को रिड्यूस कर रहा है ना, ठीक है। RO+A, ठीक है। तो इस स्टेट अगर ये रिएक्शन आपका फिजिबल है, ठीक है, मतलब इसका क्या है, डेल्टा जी आपका <0 तो फिर आप इस रिएक्शन के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि R हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन AO, A, ठीक है। तभी तो A से ये ऑक्सीजन खींच के RO बना पा रहा है, ठीक है। क्लियर है आपको श्रेया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए जल्दी। 6. क्वेश्चन नंबर 6, इसको क्लियर कर दें हम, श्रेया नोट कर लिया आपने? यस सर।
क्वेश्चन नंबर 6, ये तो पोलराइजेबिलिटी है। देखो पोलराइजेबिलिटी हमारे किस पे डिपेंड करता है अनायन के? पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन, ठीक है, ये क्या डायरेक्टली डिपेंड करता है साइज ऑफ अनायन पे, ठीक है। जिस अनायन का साइज जितना बड़ा हो उसका क्या होगा, पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ सल्फर इज लोअर देन, हाँ ये तो स्टेटमेंट सही हो गया आपका, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि इसका साइज छोटा है इन कंपैरिजन टू सेलेनियम। पोलराइजेबिलिटी ऑफ H2 माइनस इज हायर देन दैट ऑफ क्लोरीन। पोलराइजेबिलिटी आपका दो चीज पे डिपेंड करता है, साइज पे भी और चार्ज पे भी, ठीक है। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ अनायन, ठीक है। स्पेशली अगर साइज सिमिलर हो तब तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं चार्ज के बेसिस पे। तो यहाँ पे H2 माइनस और Cl माइनस है, ठीक है। H2 माइनस पे 2 माइनस चार्ज है, Cl माइनस पे क्या है, Cl माइनस पे हमारा चार्ज कितना है, Cl माइनस पे हमारा चार्ज है -1, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, पोलराइजेबिलिटी ऑफ H2 माइनस इज लोअर देन P3 माइनस, हाँ ये भी करेक्ट है, क्योंकि P3 माइनस पे चार्ज ज्यादा है तो उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो इसकी कम होगी, ये भी करेक्ट है। पोलराइजेशन ऑफ O2 माइनस इज हायर देन, नहीं ये गलत है, ठीक है, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है तो सल्फर की पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 2 3 ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। और बताइए टिल नंबर 10 एनी अदर डाउट? टेन तक और कुछ डाउट नहीं है, आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 to 20 एनी अदर डाउट? क्वेश्चन नंबर 11 to 20? सर 11 12। 11 to 12, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 to 12। अरे ये भी आपका क्वेश्चन गड़बड़ है, मतलब यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये दोनोन ऑप्शन जो है वो गड़बड़ है। ऑप्शन सी आपका ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CN, और ऑप्शन डी है CH3 CH डबल बॉन्ड CH NC। आंसर भी शायद इसी दोनों में से कुछ है, ओके ठीक है। इसका आप लोग बोनस ले लेना, लेकिन हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। कंपाउंड C4 क्या है, ये C4H5 है, क्या है H5 है, H5 है या H9 है, H9 C4H9N, ठीक है। सर 5 है शायद। 5 है, वन सेकेंड। कंपाउंड X क्या है हमारा, कंपाउंड X, अच्छा हाँ कंपाउंड X5, कंपाउंड X हमारा क्या है C4H5N, दिस इज X। इसके बारे में क्या दिया है, दिस एग्जिस्ट इन टू स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स। अच्छा, तो स्टीरियो आइसोमर तो दो तरह का हो सकता है, या तो सिस ट्रांस हो या फिर ऑप्टिकल आइसोमर हो R/S, ठीक है। और इस कंपाउंड का आप DU देख सकते हैं, ठीक है। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नाइट्रोजन के कंपाउंड्स का हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जितने नाइट्रोजन है उतने हाइड्रोजन कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसका DU आइडेंटिकल होगा C4H4 के साथ, ठीक है। और इसका DU हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका DU हो जाएगा 3। सबको आता है ना DU कैलकुलेट करना? मयंक आपको आता है? यस सर। हाँ ठीक है।
तो इसका DU आ गया 3, मतलब इसके अंदर क्या है हमारे पास, 3 हमारे पास डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। ओके, और क्या है, एक्स ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ, अच्छा एक्स का आपने क्या किया, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराया, तो एक कंपाउंड मिला दैट कैन एग्जिस्ट ओनली इन वन फॉर्म। अच्छा, फिर कंपाउंड एक्स के बारे में क्या किया, कंपाउंड एक्स ऑन ट्रीटमेंट विथ KMnO4 followed by acidification gives acetic acid and oxalic acid। अच्छा, तो C4H5N जो है आपका X, इसका आपने कराया किसके साथ, KMnO4 के साथ, ठीक है। तो आपको क्या मिला, आपको मिला CH3COOH प्लस ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये बहुत बड़ा हिंट है, ठीक है। KMnO4 के साथ कहाँ कहाँ आप लोगों ने रिएक्शन देखा है, KMnO4 हमारा डबल बॉन्ड को तोड़ देता है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है यहाँ पर, और क्या करता है KMnO4, नाइट्रोजन के साथ तो कुछ अच्छा हाँ, एसिडिक मीडियम है, ठीक है। अब देखो इन दोनों प्रोडक्ट्स में से किसी के अंदर भी नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन के जो भी कंपाउंड है उसका क्या हुआ, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको हिंट मिलना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ साइनाइड है, ठीक है, क्योंकि साइनाइड होगा तो इसकी हाइड्रोलिसिस अगर आप करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये होता, इसकी अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, NH, सॉरी क्या मिलेगा यहाँ पे, NH H प्लस, H प्लस इस पर अटैक करेगा इस तरफ, यहाँ पे आएगा OH, तो यहाँ पे आपको कुछ ये कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन बेसिकली रिटेन रह जाएगा अगर ये हुआ हमारा, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन इन दोनों कंपाउंड में ही नहीं है, मतलब हमारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बेसिकली गलत हो गया, तो या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन के बेसिस पे ऐसा देख सकते हैं, आपने क्या किया, एक्स एक्स के बारे में क्या दिया गया है कि एक्स दो तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये वाला जो हमारा कंपाउंड है ऑप्शन ए वाला, इसमें तो सिस ट्रांस कुछ होगा नहीं, ये तो एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। सिमिलरली ये जो हमारा कंपाउंड है बी, इसमें भी सिस ट्रांस कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छा तरीका नहीं है ऑप्शन एलिमिनेशन का, लेकिन हाँ हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर सॉल्व करें इसको तो यहाँ आपने क्या किया, KMnO4 से इसको ऐसे किया, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के एक साइड क्या है, CH3 है, ठीक है, तभी इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हुआ, और क्या हुआ आपका COH बन गया इस साइड से, ठीक है, और इस साइड से जो कार्बन था उसके साथ जो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, तो मतलब यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा तभी ये OH ग्रुप एक आया है, ठीक है, और दूसरे तरफ आपका क्या होगा, ये साइनाइड होगा, ठीक है, ताकि ये हाइड्रोलिसिस करके ये क्या बन जाए, ये भी COH बन जाए, तो इस तरफ से आपको, हाँ, तो ये जो आपका कंपाउंड हो जाएगा ये रिड्यूस हो जाएगा आपके ऑक्सैलिक एसिड पे, ठीक है, और ये जो आपका कंपाउंड हो गया ये रिड्यूस हो जाएगा CH3COH। समझ आया मैं, हेलो मैं क्या गया, सर डबल बॉन्ड का क्या होगा? डबल बॉन्ड का ये बोला ना, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है KMnO4 के साथ। रुको आपको पूरा एक मिनट पहले इसको नोट करो, फिर हम सारा रिएक्शन उसका लिख देते हैं। नोट कर लिया, इसको क्लियर करें।
यस सर। तो आपका जो KMnO4 है, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है KMnO4 हॉट अल्कलाइन, OH माइनस प्लस हीट, ठीक है, दोनों में सेम रिएक्शन होता है। किस तरह से होता है रिएक्शन? तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे कुछ भी हो, जैसे R H H H, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कैसे होता है। ये बॉन्ड टूट जाता है, दो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, ठीक है, ये कार्बन अलग, ये कार्बन अलग। जो बॉन्ड टूटा है उधर आप क्या करो, सबसे पहले डबल बॉन्ड O डाल दो दोनों से, ठीक है। फिर अगल बगल उसके जितने भी हाइड्रोजन है, जैसे इसमें ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, सब जगह क्या डालो, बीच में ऑक्सीजन डाल दो, ठीक है। R का R रहेगा, इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, यहाँ पे क्या होगा, वो छूटेगा, ठीक है। और फिर ये फर्दर H2CO3 है, तो ये टूट जाएगा इन H2O plus CO2. This is how KMnO4 in acidic medium is going to oxidize, ठीक है। Is it clear to you, Mayank? यस सर। जितने भी जस्ट एडजेसेंट हाइड्रोजन हो सब जगह ये OH लग जाएगा, ठीक है। तो उसी से आपको ये हिंट मिलना चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, CH3 COOH बना है, और उसके साथ क्या बना है, COOH COOH, ठीक है। तो एक तरफ से क्या होगा, एक तरफ से डबल बॉन्ड के एक हाइड्रोजन और एक CH3 होगा, ठीक है, CH3, जिससे आपको एसिटिक एसिड मिलेगा। और दूसरे तरफ एक हाइड्रोजन तो होगा ही COH करने के लिए, और तीसरा क्या है, ये साइनाइड है। तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस में KMnO4 का यूज नहीं है, बस इसका क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुआ, उससे ये COH बन गया। क्लियर हुआ मयंक? यस सर। ओके। फिर अगला क्वेश्चन कौन था आपका? सर 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो अब आपको x का जब स्ट्रक्चर मिल गया है तो फिर आप बाकी सब पार्ट भी कर सकते हैं इसका, ठीक है। जैसे x को आपने किससे रिएक्ट किया, NaOH के साथ, फिर उसका एसिडिफिकेशन कराया, तो फिर आपको Z मिल गया, ठीक है। तो x का स्ट्रक्चर हम लोगों ने अभी निकाला, CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cn, ठीक है। इसका जब आपने OH माइनस के साथ कराया तो क्या होगा वहाँ पे, अच्छा हाँ, ये हमारा साइनाइड जो है वो OH माइनस के प्रेजेंस में भी रिएक्शन कर सकता है, बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और फिर वहाँ पे क्या बनेगा, CO माइनस, ठीक है। फिर इसका आपने क्या किया, एसिडिफिकेशन करा दिया, तो ये जो आपका सॉल्ट था, यहाँ पे NaOH डाला आपने, तो जो भी कटायन है वो कटायन इधर लग जाएगा, फिर एसिड के साथ ये क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये आपका कंपाउंड बन गया। फिर इसका आपने क्या किया अगले स्टेप में, Z क्या है, हाँ Z तो मिल गया ना, ये आपका कंपाउंड Z है, ठीक है। तो इसका फिर आपने KMnO4 के साथ रिएक्शन करा के Y, और ये सब क्या है, अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं। Z का आपने क्या किया, KMnO4 से रिएक्शन कराया, फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन, ठीक है। तो अगेन आप इसको जैसे पहले तोड़ा था वैसे तोड़ सकते हैं, इसको बीच में तोड़ दो, क्या मिल जाएगा आपको, CH3COH मिल जाएगा, प्लस इस साइड से, इधर से पहले से ऑक्जेलिक एसिड बना ही हुआ है, इस साइड से क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा, ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है।
ऑक्सैलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। कंपाउंड वाई, वाई कहाँ है? अच्छा वाई इसका आपने क्या करा था? ओके, अच्छा उसका कुछ जरूरत है क्या कंपाउंड वाई? कंपाउंड वाई के, इसका अगर आपने हाइड्रोजन के साथ कराया रिडक्शन तो आपको क्या मिलेगा? CH3 CH2, ये क्या चीज है? CH3, एक मिनट इसको इधर लिखो। तो आपने क्या किया? हाइड्रोजनेशन कराया, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? CH3 CH2 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 NH2। ठीक है, अ, इसका आपने रिएक्शन कराया CH3 और KOH के साथ, तो कंपाउंड A बना। बाप रे, ये कौन सा रिएजेंट है पता है किसी को? CH3 KOH, CHCl3 और KOH, कार्बाइलामाइन टेस्ट है। ठीक है, तो कार्बाइलामाइन टेस्ट क्या होता है हमारा? 1 डिग्री क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइन हमारा देता है। तो यहाँ पे ये 1 डिग्री अमाइन है, तो इससे एक और हिंट मिलना चाहिए कि आपका ये जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं वो सही है। ठीक है, वही वाली ट्रीटमेंट है, followed by PCC, कंपाउंड वाई। इसका जो आप रिएक्शन कराते हैं HNO2 के साथ, तो डाइएजोटाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, डाइएजोटाइजेशन के बाद वहाँ पे एलिमिनेशन होगा। ठीक है, followed by reaction with PCC। नहीं, डाइएजोटाइजेशन के बाद इधर जो आपका कटायन बनेगा, एक मिनट, आगे अगर पीसीसी आ रहा है मतलब यहाँ पे क्या होगा? कुछ अल्कोहल, मत अल्कोहल बना होगा। ठीक है, तभी उसका पीसीसी पॉसिबल है। ठीक है, अल्कोहल को पीसीसी से रिएक्ट कराएंगे तो फिर आपको एल्डिहाइड मिलेगा जो कि पॉलन टेस्ट दे देगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपका जो अल्कोहल है वो क्या है? अल्कोहल आपका 1 डिग्री है। अगर आपका अल्कोहल 1 डिग्री है तो अगेन ये चीज मतलब आप सही सोच रहे हैं, वाई का जैसे आपने डाइएजोटाइजेशन कराया HNO2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? CH3 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 CH2 होल 4, और यहाँ पे क्या? OH। ठीक है, ये आपका क्या है? ये जो अल्कोहल है, इसका फिर आपने पीसीसी से कराया, तो ये वाला जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, और फिर उस एल्डिहाइड का आपने टॉलरेंस टेस्ट करा दिया। ये क्लियर है कैसे हो रहा है इसमें रिएक्शंस? देखो जेई एडवांस में हमको नहीं लगता है इतना कॉम्प्लेक्स आएगा, ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, लेकिन हाँ पूछ भी सकता है। हम लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए, ये सब सिंपल KMnO4 के जो रिएक्शंस है, ठीक है, किस तरह से वो काम करेंगे ये सब। बस इस क्वेश्चन में क्लिकिंग पॉइंट यही था, ये जो KMnO4 है ये किस तरह से, ये वाला कंपाउंड हमारा क्या बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन हो गया। और बताइए, और कोई डाउट? और कुछ डाउट नहीं है? अगला 15 to 20, एनी अदर डाउट? ओके, तो फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर विल एंड द क्लास।
इसको नोट कर लिया सबने, क्लियर करें? यस सर। और कुछ डाउट पूछना है किसी को? एनी अदर क्वेश्चन? ओके देन, थैंक यू वेरी मच। यू कैन रिवाइज योर नोट्स। अगला टेस्ट आपका फिर 6:30 से होगा, ठीक है?